Hello and good morning, students. Once again, welcome to your online session class of social science. So, today we are going to continue with the same history chapter, that is, chapter number 1, what, where, how, and when. Yesterday we have seen the Rashida's question, that how she was wondered that anyone could know what happened so many years ago, and we have also find that river Narmada was the only river, first river where hunting and gathering was started. We have find the Garo Hills and the Kirtar Suleiman Hills. What we have seen that Suleiman and the Kirtar Hills where the wheat and barley first begin to grow, and even we have seen that the uh, places where rice was first grown was to the north of Vindhyas. Vindhyas के north में I have shown you the directions. Once again I am telling you, see students, these all are directions. This is east, west, north and south. This is northeast, this is northwest, this is southeast and this is southwest. So rice कहाँ found हुए थे? विंध्यास के north में. ये विंध्यास है, इसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस फाउंड हुए थे. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रीडिंग. Trace the river Indus and its tributaries. Now what is tributaries, students? Tributaries, underline this, tributaries are smaller rivers that flow into a larger rivers. छोटी छोटी नदियाँ जो बहती हैं और वो जब वो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. सपोज दिस इज़ बिग रिवर एंड दीज आर स्मॉलर रिवर्स, तो ये जब इसमें जाके मिल जाएंगी तो इसको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. स्टूडेंट्स 4,700 ईयर्स पहले इंडस जो रिवर थी वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद 2,500 ईयर्स पहले फिर लोगों ने गंगा रिवर के साइड से भी, मतलब उसके कोस्ट पे रहना स्टार्ट किया. बैंक्स ऑफ द गंगा मीन्स उसके किनारे. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन. इन गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसको बोलते हैं सोन. In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. जो एरिया गंगा के, सी दिस इज गंगा रिवर, गंगा के साउथ में जो एरिया आता था उस वहाँ पे जो किंगडम था, जो बड़ा सा राज्य था, उसको बोलते हैं मगध. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो अब बिहार स्टेट में है. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. अब जो मगध था वहाँ पे वो बहुत बड़ा राज्य बन गया था, एंड जो अलग अलग राज्य थे वो कंट्री के अलग अलग रीजन में भी सेटअप हो रहे थे. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. अब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे. नाउ स्टूडेंट्स, हियर one word is given, subcontinent. Do you know the meaning of word subcontinent? Now I am going to explain. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जैसे एशिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है. आई होप यू ऑल नो दैट एशिया एक कॉन्टिनेंट है. तो एशिया का जो बड़ा सा पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का जो मेजर जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सब कॉन्टिनेंट. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये पूरा एक एशिया का मेजर पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट. Kingdoms were set up throughout. People traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. अब स्टूडेंट लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फुट पे जाएंगे. तो अब जब वो फुट पे जाएंगे उस टाइम तो ट्रेन्स होती नहीं थी जैसे आज होती हैं कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन, फ्लाइट्स. But at that time, the people used to travel on foot. All the vehicles were not available at that time. So what happened? तब उनको बहुत सारी डेंजरस जर्नीज फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उनको माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते थे, फॉरेस्ट जाना पड़ता था. So men and women who moved in the search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way.
Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. Now, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे? अब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती होंगी, जैसे फ्लड्स, ड्रोट्स, और हो सकता है कि जो बड़े-बड़े जो लोग थे वो आर्मीज़ में चले गए, दूसरी ज़मीनों पे जब उनको कब्ज़ा करना होता था, जो मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी होते थे वो कैरावन से ट्रैवल करते थे, शिप से ट्रैवल करते थे, और उसमें क्या लेके ट्रैवल करते थे? बहुत सारी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें लेके ट्रैवल करते थे। और बहुत लोग क्या करते थे, बहुत रिलीजियस टीचर्स, धार्मिक टीचर्स जो होते थे, वो लोगों को ज्ञान देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज? आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस यू हैव टू आंसर कि हम लोग आज क्यों ट्रैवल करते हैं, आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. Frontiers means boundary of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the seas. People from across the frontiers and came into the subcontinent and settled here. Now students, see this map. ये जो इंडिया की बाउंड्री है इसको बोला जाता है फ्रंटियर्स। अब लोगों को जब इंडिया के अंदर आना होता था तो ये बाउंड्री क्रॉस करके आना था, तब बहुत सारा डेंजर होता था इसमें, और काफ़ी लोग यहाँ से इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ पे सेटल हो गए। नाउ टर्न योर पेजेस। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. अब ये जो मूवमेंट होते थे, ये लोगों के ट्रेडिशनल को इन्होंने बढ़ाया, जो उनकी कल्चरल मतलब जो उनके रीति रिवाज से उसको बढ़ाया, और उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें निकाली, जैसे म्यूज़िक, स्टोन पत्थर बनाना, कुकिंग फूड, ये सारी चीज़ें। नेम्स ऑफ द लैंड। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेम्स ऑफ द लैंड मीन्स हमारी जो इंडिया है उसका नेम कैसे पड़ा। आई होप आपको भी ये जानना होगा ना कि हाउ डज इंडिया द वर्ड कम्स फ्रॉम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए कौन से दो वर्ड्स यूज़ करते हैं? इंडिया एंड भारत। द वर्ड, अंडरलाइन दिस, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया वर्ड जो है वो इंडस रिवर से निकल कर आया है, जिसको संस्कृत में, इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, call it as Hindos or Indus. Now students, जो Iranians होते थे और जो Greeks होते थे वो इंडस रिवर को इंडोस और हिंदोस बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब इंडस रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड होती थी, सी स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू फाइंड इंडस रिवर। सी हियर, दिस इज इंडस। तो इसके ईस्ट में जो लैंड होगी उसको बोलते थे इंडिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for country. अब ये जो भारत वर्ड था स्टूडेंट, ये किन के लिए यूज़ किया जाता था? जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, मीन्स इधर वाले पोर्शन में, नॉर्थ वेस्ट हियर, जो लोग नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए भारत वर्ड यूज़ किया गया, और लेटर ये पूरी कंट्री के लिए यूज़ किया गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. Now student, this is important. What happened? अब कैसे पता चला कि पास्ट में क्या हुआ? ऐसे तो नहीं है कि हमें पहले से ही सब पता था, नहीं, किसी ने तो पता लगाया होगा। तो ये कैसे पता लगाते हैं लोग? बुक्स पढ़ के, जो आज से काफ़ी साल पहले लिखी गई वो बुक्स रीड करके। और उन बुक्स को क्या बोला जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये हैंड से लिखी जाती थी। नाउ सी हियर, यू हैव टू अंडरलाइन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय
hand. This comes from the Latin word menu meaning hand. मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है मेन्यू, जिसका मतलब होता है हैंड, मतलब जो हाथ से लिखा जाता था उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch which grows in the Himalayas. Now students, मैन्यूस्क्रिप्ट को किस पे लिखते थे? उस टाइम पे तो पेपर नहीं होता था, तो इसको हम लिखते थे पाम लीफ पे, और या फिर birch ऑफ अ ट्री, पेड़ का जो bark वाला पोर्शन होता है, मीन्स जो दिस वुड वन, उसमें से एक बिर्च निकलती है, एक चीज़ वो हिमालयाज़ पे ग्रो करती है स्टूडेंट. सो उस बिर्च पे लिखा जाता था हाथ से, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स. सी हियर वन फोटो ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इज ऑल्सो गिवन. सी दिस इज रिटन ऑन पाम लीफ. इसको पाम लीफ पे लिखा गया, और पाम लीफ को बहुत सारा पाम लीफ को जोड़ के एक ये पेज जैसा लग रहा है, और ये होता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many had survived. कुछ सालों पहले, सालों साल जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे ये ख़राब हो गए, कीड़े मकोड़े इसको खा गए, इंसेक्ट्स खा गए, और बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ सर्वाइव, मतलब अभी भी हैं, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और उसको मंदिरों में रखा जाता है. These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices. The lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा जाता था? ये इसमें हर तरीके की चीज़ें लिखी जाती थी. रिलीजियस बिलीव्स, लाइव्स ऑफ किंग की राजा कैसे अपना जीवन बिताता था, मेडिसिन, साइंस के बारे में सब कुछ लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. और ये कौन सी लैंग्वेज में होती थी? संस्कृत में. और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राकृत लैंग्वेज होती थी. प्राकृत लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे. जैसे हम इंडिया में अभी हम यूज़ करते हैं हिंदी, लेकिन उस टाइम पे ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे. एंड तमिल. We can also study inscriptions. Now students, manuscript is clear to you, I hope. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जिसको हम हैंड से लिखते हैं. किस पे लिखते हैं? पाम लीफ पे, और बिर्च ऑफ अ ट्री पे लिखते हैं, जो हमें हिमालयाज़ में मिलता है. बिर्च ऑफ अ ट्री जो पेड़ है उसकी बाग से एक बिर्च निकलता है, उस बिर्च पे लिखते हैं. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. अब हम इसमें इंस्क्रिप्शंस भी स्टडी करेंगे, बट inscriptions we will study in the next class. Till then, you have to read the chapter once again, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you, students.